व्हाट इज द लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन? लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आपके पास अगर कोई चीज दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है, if f is any function of alpha and beta, two independent variables, and when we apply the Legendre transformation, then one variable will be converted into the new variable that will be a function of partial f over partial alpha. अब उसे g कह दो, कोई भी कह दो, that is q. But for example, if you don't need alpha, then that will be converting to the partial f over partial alpha comma beta, or if we don't need a b, then that will be you can convert the beta into alpha will remain the same. The new function will be function of alpha, and that will be independent from the beta. You can in some books you write beta under this transformation alpha will remain the alpha naught, mean alpha will remain the alpha naught, mean that will be alpha is constant, g will be constant with respect to alpha. Similarly in this case beta will be अच्छा इसे g की बजाय कुछ और कह दो क्योंकि पहले हमने g यूज किया है, तो if we use चलो g रहने दो, mean if in second case beta will be constant. Okay, so this will be b naught. So what is the purpose of Legendre transformation? Legendre transformation what is the purpose of Legendre transformation? It always use one unrequired variable into it do always use to convert one unrequired variable into the new variable, but with some condition. ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल छोड़ सकते हैं, but the new variable will there will be some conditions on a new variable. That what is that should be a partial derivative of old function with unrequired variable with respect to unrequired variable. f is a old function and alpha is unrequired variable. जो आपको पास unrequired variable है उसकी respect derivative लेते हैं. So what is the purpose of the Legendre transformation? It transforms the old unrequired variable into the new variable, which is the partial derivative of old function with respect to unrequired variable. Okay, so I have already explained in last time. I have already explained. So this is actually the Legendre transformation, and we have done okay. Okay, so what was the next exercise? Exercise was prove that f alpha beta that is converted into new variable g, that is the what was that? That was the f alpha beta minus partial f over partial alpha. That was the prove that this transformation, prove that the transformation ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई किया, ठीक है. When we apply this transformation,
is Legendre transformation. Okay, or we can say that, or the G is function of new G is function of uh, partial f over partial alpha beta, or we can say that G is सर थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा काइंडली। ये कल का लिखवाया था आपको सारा। सर जी आवाज नहीं सही आ रही। अब आ रही है? वो आपके नेट का मसला होगा, बाकी कोई मसला नहीं। तो G is independent from alpha but depend on beta as well as partial f over partial alpha. So this will be so G is the independent from alpha but dependent from the beta as well as the partial alpha. You can say that that is not gamma, but that is the new function partial f over partial alpha. Now how we can prove it, as I have already explained, or we can prove that this function G will be alpha, here alpha will be alpha naught, इसका मतलब यही होता है, alpha naught mean that is independent from the alpha, that is constant with respect to alpha. Okay, for no, proof or solution. So for this purpose, I have written G as a f alpha beta minus partial f over partial alpha multiplied by alpha. Whenever we want to see that is independent from any function or not, or that are depending upon one variable or other variable, then we should take a derivative. So we take a derivative dg. We know that the derivative of f will be partial f over partial alpha d alpha plus partial f over partial beta. F is understood, that is the function of alpha beta. Okay, so that will be a beta. Then that will be a minus. We have to take the partial f over partial alpha multiplied by alpha. Okay, so we write it again, partial f over partial alpha d alpha plus partial f over partial beta d beta minus the product formula will be applied, because here this is a, we can say that this is a and this is function of, this is b. So product formula, derivative of first
D partial F over partial alpha plus when we multiply with the minus, then that will be first function will be as it, and derivative of second. But we know that this term is same as this, so this will be cancelled out from this. Okay, and the result will be equal to so the result will be equal to partial F over partial beta d beta minus d partial F over partial or I can write it in this way. Okay, sorry, I can write it this way, that minus d partial F over partial alpha. Okay. So here is alpha, but we know that or we can write it in this form, that partial F over partial beta d beta plus minus alpha d partial F over partial. This way. Okay, so from here we can see that the result is depending upon two variables. One is this d beta, and one variable is and one it is depending upon this variable. Okay. So result are depending upon two variables. So I can say that the g is actually the dot function of it is independent from alpha, because there is no change with respect to alpha. So new function g, this implies that our g is actually the function of beta and partial f over partial alpha. Okay. Okay. If we define that this is equation x, okay, and if I take the derivative of this dg, then this dg will be equal to partial g over partial beta d beta plus partial g over partial f over partial alpha d partial f over partial alpha. If I say that this is equation y, okay. सर थोड़ी स्क्रीन छोटी करिएगा, उसके पूरी लाइन एक साथ में नजर आए.
मैं कह रहा था रिकॉर्डिंग बाद में देख लेते तो जरा ज्यादा इजी ना हो जाता। वैसे तो पूरी लाइन नहीं नजर आ रही है ये लिखने में फिर मुश्किल। वहां आपको स्क्रीन बड़ी नजर आ रही है, मेरे पास जो टैब है वो छोटा है। एक दफा ये आप नोट कर लो, बाकी जो रह जाता है वो उस पर आप कर लेना क्या कहते हैं। So equation x and y को if we comparing the x and y, if x and y, तो x और y को आप कंपेयर करते हो। if we compare the x and y, then the coefficient of we are comparing the coefficient of तो उस तरह भी लिख लो। Can say for simplicity we can write by comparing the coefficient of d beta and d partial f over partial alpha in x and y, equation x and y. What will be happen? You know that if you compare the coefficient of x and y, uh, this will be equal to this. Okay, partial f over partial beta will be equal to partial g over beta. That is that. Partial f over partial alpha is equal to partial g over partial beta. Right? You will get one this and the second equation, this will be equal to this. Okay, alpha will be equal to minus partial g over partial alpha over partial alpha. ठीक है, okay. So this will be your result. So and the next equation is सर ये फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे पार्शियल एफ और पार्शियल बीटा नहीं आएगा? One minute, please. That will be equal to you are right. This is a partial. Thank you. Thanks for correction. ठीक है. So this will be okay. This will be your result. अब ठीक है, क्लियर हो गया? इससे थोड़ा नहीं सर, इससे ऊपर से जब एक्सरसाइज की स्टेटमेंट लिखवा रहे थे पिक्चर ले लो ना, नहीं तो मैंने कहा ये रिकॉर्डिंग तो ऊपर आ ही जाएगी आपके पास। ये आपने एक्सरसाइज लेनी है तो बहुत छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, अब ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। Okay, so as I have already explained that why we use the Legendre transformation in on a Lagrangian, because we know that in now we will use it on the Lagrangian. Okay, why we will use why we will apply the Legendre transformation on Lagrangian? Because
Lagrangian is function of position and velocity. Okay, and velocity can never velocity can to quantize, we can only quantize the momentum. Yes, at some instant we can quantize the velocity, but we can quantize only the generalized velocity. Sorry, quadratic velocities by using the path integral formalism. And path, we know that path integral formalism is a very difficult and very complicated, because we have to, according to path integral formalism, a particle take an infinite path. Okay, so we have to integrate infinite time. And one thing is it is difficult, and second, it is only possible for only the quadratic velocity. So and so generally we can't quantize the velocity. So that's why we need we have to convert the velocity into the momentum. Okay, so firstly we have to convert the velocity into the momentum. So that's for that that's why we will use Legendre transformation to convert Lagrangian into Hamiltonian. Hamiltonian will be function of position and momentum. And then next question is why we don't use the Hamiltonian directly? Why firstly we find the Lagrangian and then we quantize. When we firstly we find the Lagrangian and then we transform into the Hamiltonian and then quantize. Why we have to follow these paths? Why we don't? Why we can't take the shortcut? Why we can't apply the shortcut? Because as velocity can't be quantized, generally velocity can't quantize. Similarly, it is very difficult to make a momentum, Lorentz invariant momentum, to get the Lorentz invariant momentum. For this purpose, firstly we have to find the velocity and then we have to convert it into the. So we have to follow this procedure by action principle. First find the Lagrangian, okay, Euler-Lagrangian equation, then we will convert into the its Hamiltonian by applying the Legendre transformation, and third step will be we will quantize. If we are interested in any general dynamics or unification, or we want to develop any type of dynamics, we have to follow these three steps. Firstly find the Lagrangian, then by applying the Legendre transformation find the Hamiltonian, and then quantize that. Okay, so these are the three steps. Okay, so how we will apply the Legendre transformation on Hamiltonian? Apply Legendre transformation to Lagrangian to get the Hamiltonian and also find the Hamilton equations. Okay,
As we have already proved that if f is function of alpha and beta, then we will get the new variable when we apply the Legendre transformation. Then we will get a new variable g that will be function of partial f over partial alpha. That will be equal to beta, and this will be equal to f alpha beta minus partial f over partial alpha multiply by alpha. We have already proved that. That is equal to, this is the Legendre transformation. Okay. Similarly, if we transform partial f over partial beta by applying the Legendre transformation, that may be a g, but we are not interested. But if alpha is required function but beta is undesired function, mean that will be g and partial f, if we are interested to convert it into this function partial beta. Okay. In the last time, alpha is converting in last exercise, alpha is converting into the new variable. Now beta is converting into the partial f over partial beta. So now the second variable is changing. So because ordering is changing, so we will multiply minus with the, we will because the order is changing, so we will multiply with the minus. So the result will be, now the result will be equal to f alpha beta minus partial f over partial alpha alpha. ये नहीं आएगा. This will be a now, this will be a wrong, because now if we are not converting alpha, we are converting beta. So सर partial f over partial beta into beta आएगा ना? Yes, that's I want to know. That's exactly that. That is the answer. That should be a this. Okay. This will be this. Okay. And now this will become partial f over partial beta beta. So this will be okay. So new function will be function जो कि आपके पास नया आ रहा है, g will be so this g will be okay. So this will be the answer. सर इसमें एक क्वेश्चन है इसी टॉपिक के मुताबिक जी जी हमने यहाँ पे सर अल्फा को क्यों एलिमिनेट किया है, बीटा को क्यों नहीं किया? नहीं, ये अब सिचुएशन हमने कहा कि आपको पता है अल्फा या बीटा दोनों में से किसी को आप गाइड कर सकते हैं. इस दफा हमने बीटा को किया है, पहले हमने अल्फा को किया था, इस दफा हमने बीटा को किया. ठीक है, लास्ट टाइम हमने अल्फा को कन्वर्ट किया था कि अल्फा कंडीशन है वैसे ही जिसको मर्जी करें हम करना. हाँ, जिस मर्जी को कन्वर्ट कर. ठीक है, जो भी अनरिक्वायर्ड होगा ना, ठीक है, आपके पास दो फंक्शन है, दोनों में से कोई भी अनरिक्वायर्ड है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. मैंने आपको मेरा ख्याल है जिस दिन डेफिनेशन लिखवाई थी लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन उसी दिन बताया था कि जो भी आपका अनरिक्वायर्ड होगा ना, साहब समझ आ गई है? जी सर, मैं सर ये हमेशा अप्लाई दो ही वेरिएबल पे होगा जो एफ होगा, दो से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं? नहीं, सिर्फ दो पे. ये अभी तक फार्मूला जो है दो के लिए बना हुआ. ठीक है, और
और दूसरी एक और बात भी है कि अच्छा, पेपर में मैं वो बार बार पूछ रहा था, अतीक भी पूछा था, पेपर में अल्फा बीटा नहीं लिखा होगा, पेपर में कुछ और भी लिखा जा सकता है, साई भी लिखा जा सकता है, काई भी लिखा जा सकता है, टा भी हो सकता है, यस सर। अल्फा बीटा की जगह Yes, एफ sir. की जगह साई भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल इंडिसेस चेंज भी हो सकते हैं। सर इशू ये, अब हम कैसे इसमें डिफरेंशिएट करेंगे कि हमने बीटा एलिमिनेट करना है या अल्फा करना है? हाँ नहीं, वो तो लिखा होगा ना जिसमें कन्वर्ट करना होगा, तो वो कन्वर्ट जो होगा वो इक्वेशन से पता चलेगा, मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये देखो, अगर आप इस इक्वेशन से आपको पता होना चाहिए, ये इक्वेशन लिखी हुई है तो आपको पता होना, ये इक्वेशन सॉरी, अगर आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई है तो इसका मतलब है बीटा कन्वर्ट हो रहा है, अगर यानी बीटा मीन सेकंड वेरिएबल, आपको ये पता होना चाहिए। अल्फा बीटा कुछ नहीं है, ये नाम है ना, जनरली अल्फा बीटा हो जाए, एक्स वाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, अल्फा बीटा की जगह एक्स वाई भी हो सकता है, एफ की जगह साइन एक्स भी हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये भी पेपर में दे सकता हूं कि साइन जो है वो फंक्शन है थीटा फाई का, ठीक है, आपने इसे कन्वर्ट करना है, लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं थीटा पे लगा दो, थीटा नहीं चाहिए, तो इसकी लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगी? साइन थीटा की क्या आएगी? पार्शियल फाई और पार्शियल, अगर हमें थीटा नहीं चाहिए, चलो अगर हमें हाँ, अगर हमें थीटा नहीं चाहिए, इफ थीटा इज अनडिजायर्ड फंक्शन, तो आपके पास नया रिजल्ट आएगा, वो आएगा थीटा इनटू पार्शियल एफ, पार्शियल पहले साइन ऐसे आएगा, साइन थीटा फाई, मतलब फंक्शन एज इट, माइनस पार्शियल साइन थीटा फाई ओवर पार्शियल थीटा मल्टीप्लाई बाय थीटा होगा सर, ऐसे ही आएगा। थीटा मल्टीप्लाई बाई थीटा, ठीक है। और पार्शियल थीटा का डेरिवेटिव, और इसको वैसे लिखें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, पेपर में इस तरह के बड़े क्वेश्चन आने हैं, पिछली दफा नहीं आए, इस दफा आएंगे जरूर। ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा फाई, तो इसका साइन का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट क्या आ जाएगा, कॉस थीटा फाई, ठीक है, समझ आ गई? यस सर, ठीक है सर। अच्छा, ये भी आ सकता है आपके पास, इसके अलावा आपके पास ऐसे भी हो सकता है, एक्सरसाइज देखने, ये भी आ सकता है, चलो मैं साइन ही ले लेता हूं समझाने के लिए, वैसे कोई भी वेरिएबल वहां, साइन एक्स कॉस वाई ले लें या कॉस वाई ले लें, अब आपने वाई को कन्वर्ट करना है, ये तो टोटल एक फंक्शन बना ना, यानी ये आपके पास एफ एक्स वाई बन जाएगा ना, ये समझे, ठीक है। तो इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स, अच्छा अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं अब y को कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने आपको क्या कहा था, -7 बाहर मल्टीप्लाई होगा और y को कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड वेरिएबल को, साइन x cos y माइनस पार्शियल साइन x cos y ओवर पार्शियल y, ऐसे ही है ना, ऐसा ही है बच्चों, या ठीक है, साइन ऑफ वाई तो नहीं ना आएगा। नहीं नहीं, y आएगा ना, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं आप, फंक्शन साइन ऑफ एक्स तो नहीं ना आएगा बेसिकली।
हम y के रिस्पेक्ट से नहीं कर रहे, सिंपल cos y नहीं आना चाहिए। पार्शियल y डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय y से कर रहे हैं ना, पार्शियल y ओवर फंक्शन तो पूरा आएगा ना सर पार्शियल, अच्छा फंक्शन पूरा आएगा, ठीक है सर। फंक्शन तो फंक्शन आपके पास sin x cos x y है ना, तो आगे आपके पास आ जाएगा माइनस sin x cos y माइनस cos y बाहर आ जाएगा y और cos y बाहर आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी मैं गलत लिखा, sin x बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है sin x विद रिस्पेक्ट टू y कांस्टेंट है, तो आपका cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, बस माइनस साइन वाई आएगा सर। माइनस sin y आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, दिस विल बी आंसर। समझ आप लोगों ने ना इसको ना, ये प्रेशर वॉल्यूम जो थर्मोडायनामिक्स के लॉज नहीं पढ़े थे उसमें प्रेशर वॉल्यूम, उसमें देखोगे ये लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरह यूज होती है, यही वाला फार्मूला है, ये अतीक आप लोगों के जिम्मे है, ठीक है ना, ये लाजमी बेटा आप लोगों ने करना है अपने एग्जाम्पल, खासतौर पर थर्मोडायनामिक्स के वो पढ़ते हैं ना यूवी कन्वर्जन एच यूवी, उसमें भी कन्वर्ट करते हैं। यस सर, बिल्कुल आप देखोगे यही बिल्कुल यही फार्मूला है, तो वहां कोई बताता नहीं है टीचर उस वक्त आपको मतलब कि ये लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है, लोग वैसे ही थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ फोर्थ लॉ पढ़ाते हैं ना, उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सी जगहों पे यूज होता है जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन यहाँ सीएम में हम इसे सिर्फ लैग्रांजियन को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मूव कर दूं आगे, मैं चलूं? यस सर, यस सर। ओके मुझे इसलिए रिमूव करना पड़ा, वो जो पिछली एक्सरसाइज थी ना वो मैंने करनी थी, तो मेरे डिजिटल बोर्ड में इतनी जगह नहीं है, छोटा सा तो मेरा बोर्ड है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। अच्छा अब हमारे पास ये हमने ये गाइड किया था, अगर बीटा कन्वर्ट हो रहा हो, ये हमने क्यों किया वाई, एक्चुअली जो एल में जब हम करते हैं तो एल लैग्रांजियन किसका फंक्शन है, क्यू एंड क्यू डॉट का, ठीक है, लैग्रांजियन किसका फंक्शन है, क्यू एंड क्यू डॉट का, यानी इसमें क्यू आपके पास अल्फा है और क्यू डॉट बीटा है, ये प्लीज बीच में ये किसकी प्लीज अपना माइक जो है आप साइलेंट रखिए, आपने पहले भी देखा कि कितना प्रॉब्लम आता है, उस लेक्चर में ये आप लोगों के ऑनलाइन लेक्चर की माइक की वजह से प्रॉब्लम आया, प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि लैग्रांजियन में क्या होता है, आपने मैं दोबारा बता देता हूं, ये जो लैग्रांजियन है ये किसका फंक्शन होता है, दैट विल बी फंक्शन ऑफ क्यू एंड क्यू डॉट, तो दिस विल बी योर अल्फा and this will be your beta and this आप समझे कि ये आपके पास f है, ठीक है, वो जो पहले हमने डिफाइन किया, that is moving toward the g के h, यहाँ हमने इसे मूव कराना है, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h में, ठीक है, और ये किसका फंक्शन होगा, इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ क्यू पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट, ऐसे ही है ना, अल्फा एज इट रह रहा है और ये आपका बन रहा है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल, ओके, इनटू क्यू डैश आएगा, क्यू डैश क्यों आएगा, क्यू तो वैसे ही रहेगा और पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट में मुकदमा होगा, ओके, दिस इज द यानी हमने ये इस पे लैग्रांजियन पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई, ठीक है ठीक, ओके ओके, तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, क्यू जो है वो अल्फा है और क्यू डॉट बीटा है एंड सेकंड वेरिएबल इज जी, ओके, सो अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन अगर आप बात करें तो जो एच है वो किसके बराबर होगा, ये क्या लिखा हुआ था हमने, जब बी कन्वर्ट हो रहा है पार्शियल
एफ क्या है आपके पास, एल, क्यू एंड क्यू डॉट with respect to derivative beta, q dot and q dot, yeah, माइनस आपने क्या फंक्शन f, यहां से आ जाएगा एल क्यू, या क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, एल तो डिस फ्री है और तो ये आपके पास जो के है इनके ऊपर ये डमी डिसेस, क्योंकि के एज ए ट्रांसफॉर्म होता है ना, ये वेक्टर मैंने आपको बताया था सिंगल रैंक टेंसर है, तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर हो गया, एच, एच है ये आपके पास एच आ जाएगा। ओके, अरे चुप कर गए। यस सर, जी यस सर, सर। जी सर, इधर है हम। रोजा बहुत लगा पड़ा है अच्छा, इसको। ये तो है सिंपल, ये तो है सिंपल क्लासिक मैकेनिक्स में। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, वैसे ही मैंने आपको पहले बताया हुआ है हमारा क्योंकि ये जो है एक्चुअली हमारे पास जो है ये हमारे पास सीएम जो है ये एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स में जो है रिलेटिविस्टिकली डील करे। अभी अब मैंने जनरलाइज नहीं ली, अभी जनरलाइज जो बिल्कुल प्योर एडवांस का है वो बाद में आएगा, और ये है आपके पास नॉन रिलेटिविस्टिकली जो अभी हमने रेड में लिखा है, ठीक है। ये है, दिस इज फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, नॉन सर जी। सर जी, आपकी इतनी धड़ल्लेदार आवाज का राज क्या है? रोजे के साथ हमारी तो आवाज ही नहीं निकल रही। आप लोगों की आवाजें सुन सुन के नहीं। अच्छा, ये जो चीज है ना, दिस बट partial L over Q and Q dot, ये किसके बराबर होता है? ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है पी क्यू, ठीक है। इसे हम सर पी के ऊपर डॉट नहीं आएगा? नहीं, जी जी ठीक है सर। मोमेंटम कंजुगेट, अच्छा ये कंजुगेट कहलाता है पोजीशन वेरिएबल का। मोमेंटम कंजुगेट ऑफ क्यू के, वेलोसिटी का नहीं कहलाता, लेते डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव वेलोसिटी के लिहाज से है, लेकिन कहलाता ये जो है पोजीशन का है। मोमेंटम कंजुगेट ऑफ द पोजीशन क्यू के, ये क्या है, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन वेरिएबल। सर मोमेंटम कॉन्जुगेट क्या होता है? लीनियर मोमेंटम जैसे आप आम सेंस में कहते हैं, यानी ये एल और क्यू डॉट का ये लेंगे तो ये आपके पास इसके बराबर आएगा। इसकी ये रफली से एक्सरसाइज है, ठीक है, जनरली तो उसको उस तरीके से नहीं, मैं ये अभी देता हूँ एक्सरसाइज, करवाता भी हूँ क्योंकि ये पार्ट है आपके कोर्स का, एक्सरसाइज समझ में ये वैल्यू। अच्छा, तो एक्सरसाइज करने से पहले ये अब आपका क्या बन गया, इक्वेशन क्या बन गया, एच किसके बराबर आ गया, एच किसके बराबर आ गया, अब आपके पास ये वैल्यू डालेंगे तो ये देखें ना, ये आप ये जो चीज है आपके पास क्या आ जाएगी, ये चीज किसके बराबर आ जाएगी, ओहो
ये किस चीज के बराबर है? पी क्यू के, ऐसे ही है ना? यही क्या है ना, मैंने आपको जी सर ऐसे ही है। ये पी क्यू किया, तो एच फिर किसके बराबर आ गया आपके पास? पी क्यू के माइनस लैग्रांजियन कोएफिशिएंट। पी क्यू के आगे क्या था? मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? क्यू के डॉट, ऐसे ही है ना, माइनस एल एज ए फंक्शन ऑफ क्यू एंड क्यू डॉट। अगर आप देखना चाहते हो ये, ठीक है, ये आ गया आपका पी क्यू के, ये क्यू के डॉट आ गया, और ये एल आपके पास है। तो ये आपके पास ये रिजल्ट, ठीक है। तो सर ये हैमिल्टोनियन इक्वेशन बन गई है। ये हैमिल्टोनियन की इक्वेशन बन गया। हैमिल्टोनियन जी को जी हमने अभी कन्वर्ट किया है, लैग्रांजियन को हमने कन्वर्ट कर दिया हैमिल्टोनियन, ठीक है। जी जी सर और ठीक है। इट विल बी, इट शुड बी इंडिपेंडेंट, ये हम बाद में चेक करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है। ये वो उसी तरीके से ये प्रूव किया जा सकता है कि ये वेलोसिटी से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होगा, बट इट विल बी फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है, जी कंजुगेट सर। मोमेंटम। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है आगे जाने से पहले। सर एच के साथ क्यू कॉमा पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट नहीं आएगा एच के साथ? लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि सर ऊपर इक्वेशन में जो सॉल्व किया उसमें तो लिखा हुआ था। हाँ, h as a function of q and you want to say that क्यू क्यू एंड पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, आप यू आर एब्सोल्युटली वो भी लिख ऐसे सकते भी हो। लिख सकते हैं वैसे। और जी सर नहीं, ठीक। और दूसरा ये इसके बराबर भी आ गया ना, अब उसके बाद h इक्वल टू एच, वो जो था वो था पी क्यू। जी सर वो ऊपर किया था ना, सॉल्व किया है हाँ, तो आपने एच इज इक्वल टू। जी क्यू जी एन पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट, और पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू जी डॉट किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर। जी सर पी क्यू करना। वो क्यू क्यू हाँ, इंडिसेस। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो। यू आर पार्शियल क्यू डॉट के है ना, ये आपके पास पी क्यू ये किताब, ठीक है। तो यानी ये कंजुगेट है, पार्शियल क्यू डॉट के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना। अब आपने मोमेंटम को इस तरह डिफाइन करना। अच्छा, इसकी थोड़ा सा हम इसको सोल्यूशन भी है, रफली सा सोल्यूशन है, ठीक है इसका। लेट्स सपोज ये सिंपल ऐसा है नहीं, इस ब्रॉडर सेंस में सिंपल ऐसा नहीं है। मैं इसको आपको कर देता हूँ, सोल्यूशन कह दो या प्रूफ कह दो। तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू, यहाँ ये डेफिनेशन यहाँ से आई थी इसकी, लेकिन एक्चुअली ये इसलिए है क्योंकि लैग्रांजियन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमने स्टार्ट कैसे लिया था, ये आया कहाँ से था लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन, इस वजह से आपको इसको मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये किस लैग्रांजियन हमने काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी के डॉट अच्छा के डॉट से डॉट में हमेशा ये प्रॉब्लम है। ये आ गया,
तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? ये सारी पिछली एक्सरसाइज है जो हमने की हुई है, वैसे ये करवाया तो नहीं था हमने प्रूव? पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसे कंसिडर कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ओवर क्यू डॉट, हमने काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर ली थी? 1/2 m क्यू डॉट क्यू डॉट। ये लीजिए, ठीक है। ये डेरिवेटिव मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, याद होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, फिर मैं करवा देता हूँ, वैसे तो मैंने ये करवाया था आपको। ये 100% रखते ना बच्चे। ये किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 जो है आपके पास 1/2 m q के डॉट, सॉरी m q जो है वो ये कांस्टेंट है, ये आपके बाहर आ जाएंगे। और अंदर क्या मतलब इनसाइड क्या आएगा आपके पास? q के डॉट पार्शियल q के डॉट। अच्छा, ये गलत किया हमने। गलती क्या किया बच्चों, आपको बताया मैंने बताया हुआ, इसमें क्या गलती है? सर हम जो इसमें ना सर ये एम क्यू डॉट्स देर आ जाएगा। नहीं, m तो ठीक है, नहीं इसमें गलती क्या है? सर एक तो डमी 3 दफा नहीं आएगा, 2 दफा आएगा। बस यही गलती है, और इसके अलावा कोई गलती नहीं, ठीक है। डमी इंडिसेस एक दफा 2 दफा से ज्यादा नहीं आता। और दूसरा इसका तरीका मैंने ये बताया था, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना है, जब भी कोई नया वेरिएबल आएगा, वो पुराने जितने भी इंडिसेस हैं उनसे डिफरेंट होना चाहिए। मेरी बात समझ, ये हमसे गलती क्यों हो रही है? जो हमने काइनेटिक एनर्जी में ऊपर हमने काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्यू के की फॉर्म, अगर के की फॉर्म में लिया है तो वो हमें डिफरेंट लेना पड़ेगा। या तो हमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज कर लेते हैं, नीचे वाला तो हम के ही यूज कर रहे थे, तो नीचे वाला वही ले लेते हैं। तो असल में हमें यहाँ बिल्कुल यहाँ जो है एल लेना चाहिए था या के लेना चाहिए था। ये मैंने पहले भी सारे लेक्चर्स में आपको याद होगा बताया। जी सर, ऊपर या नीचे जहाँ मर्जी ले लें सर। हाँ जी, L जहाँ या मर्जी। K हाँ, यहाँ हम लेते हैं, ठीक है। ऊपर लेंगे तो वो दोनों ऐसे थे, क्योंकि वो डमी इंडिसेस काइनेटिक एनर्जी इंडिसेस फ्री है, तो ऊपर डमी इंडिसेस थे, तो ये आपके पास ये आ जाए। आपके पास ये, ठीक है। ओके, ये आपके पास आ गया। अब हम इसको अगर जब करते हैं सॉल्व, तो मास कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, तो ये आपके पास बाहर आ जाएंगे। जो कांस्टेंट है 1/2 m बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये नॉन रिलेटिविस्टिक है। रिलेटिविस्टिक में m कांस्टेंट नहीं होता, उसका सोल्यूशन डिफरेंट है। ये रिलेटिविटी में नहीं यूज कर रहा, ठीक है। तो हम क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक ट्रीट कर रहे हैं,
तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ठीक है, सेकंड फंक्शन एज इट प्लस सेकंड फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी यहाँ डॉट थी, पार्शल क्यू एल डॉट क्यू के डॉट। अच्छा, इसकी रीजन भी बता देनी है। वेयर n is constant, non relativistic मास, ये नॉन रिलेटिविस्टिक मास है, ठीक है। तो नॉन रिलेटिविस्टिक मास कांस्टेंट नहीं होता, ये नॉन रिलेटिविस्टिक, हम रिलेटिविटी को नहीं कंसिडर कर रहे, सिंपल हम टेंसेस को कंसिडर नहीं कर रहे, इस वजह से मास बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या होता है, 1 0 सर, एक्स का एक्स के 1 सर, और एक्स का वाई के रिस्पेक्ट 0, ऐसे ही है ना। 0 तो आपके पास क्यू डॉट का डेरिवेटिव यानी एल और के अगर सेम है तो आपका डेरिवेटिव 1 होगा, और अगर डिफरेंट है तो 0 होगा। इसको हमने किस चीज से रिप्रेजेंट करते रहे, पीछे भी करते रहे, पहले भी एक्सप्लेन करते रहे। दैट विल बी अ क्रोनिकल डेल्टा एल, क्रोनिकल डेल्टा, एंड दिस विल बी अ क्यू एल डॉट प्लस क्यू एल डॉट पार्शियल एल, सॉरी, क्रोनिकल डेल्टा एल के। जी अच्छा, ये किस चीज के बराबर आएगा अब आपके पास, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको पता है कि क्रोनिकल डेल्टा क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है, ये मैंने आपको प्रूव कराया भी हुआ है पीछे, वो आइलर-लैग्रेंजियन इक्वेशन वाले। आपको ये क्या करेगा, इसके इंडिसेस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। यानी आपके पास क्यू जो है ये भी एल एल सेम है, तो एल को इंडिसेस को क्यू के में कन्वर्ट कर देगा, इसी तरह इस भी के में कन्वर्ट कर देगा, ये आपके पास ये आ जाएगा। और यूं आपके पास ये आ जाएगा 1/2 पार्शल क्यू ओवर पार्शल क्यू, ये था ना इसमें, ये तो आपको पता है ये 1 के बराबर है, अगर ये था तो इसका आंसर 1 था, ठीक है। लेकिन अगर पार्शल क्यू डॉट आ जाता है या पार्शल क्यू ओवर पार्शल ये आ जाता है, ये दोनों जो है वो क्या है आंसर, ये 0 है, ठीक है। सॉरी, इसको सर ये दोनों सेम ही ये होंगे। दोनों में सर, इनमें कौन सा डिफरेंस है? मैं वो बताता हूँ, सॉरी मेरे से अगर ये और या नीचे इधर आ जाता है डॉट, ये दोनों क्या है, 0 है, ठीक है, 0 है। और अगर आपके पास क्यू एल ओवर पार्शल क्यू के होता, यानी दोनों के ऊपर डॉट ना होता, ये किसके बराबर होता, हाँ जी, क्या आंसर होगा, कौन बताएगा।
सर ये डबल इंडिसेस एल और के होगा। ये क्रोनिकल डेल्टा एल के होगा, ठीक है। जी सर। सर जो ऊपर वाला है वो जो जीरो आपने बताया उसमें थोड़ा सा बता दें अगेन। वेलोसिटी का वो आपके जो सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स में पोजीशन और वेलोसिटी इंडिपेंडेंट मैंने प्रूव कराई हुई थी। तो पोजीशन का वेलोसिटी के रिस्पेक्ट या वेलोसिटी का पोजीशन के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जो है पार्शियल डेरिवेटिव वो जीरो होगा, वो मैंने आपको प्रूव भी कराया होगा। और ये जो है अगर दोनों का मतलब इंडिसेस डिफरेंट हो तो एल एंड के आर मतलब क्रोनिकल डेल्टा एल के यानी एल और के सेम हो तो 1 और डिफरेंट हो तो 0। ठीक है ना जी, किसके बराबर आ गई थी हमने, वी हैव प्रूव दैट kinetic energy of partial q k dot that is equal to we have proved that m q k sorry we have proved that this is equal to this and this is equal to this। क्रोनिकल डेल्टा का काम क्या होता है, वो क्या करता है, इंडिसेस जो है हमने ये प्रूव किया था कि ये आ जाएगा, ये रिजल्ट निकाला। और क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है, जो सेम इंडिसेस होता है उसको यानी क्योंकि क्रोनिकल डेल्टा इफ एल एंड के इज सेम देन दैट इज 1 एंड इफ एल के इज डिफरेंट देन दैट इज 0। सो ये एल ये सिर्फ टर्म वो बचेगी जिसके साथ एल जो है वो के के बराबर होगा। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट कि ये इट विल बी चेंज दी इट विल बी कन्वर्ट एल इनटू दी K. So your result will be equal to M Q will get the result M Q K. This will be the kinetic energy Q K dot. We have proved this. Okay, ये हमने प्रूव कर लिया, ये इसके बराबर है। So ये तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। नाउ what is the second term? L is Lagrangian is equal to kinetic energy minus potential energy. And next exercise is what is the value of exercise? G beta. G. Yes. Next is potential energy. If phi is representing potential energy, then what is this? आप कोई पूछना चाह रहा था क्वेश्चन कोई? मैंने यस कोई पूछना चाह रहा है? Okay, if you have any question you can ask, ठीक है, you can unmute yourself and then ask the question. Okay, what will be the solution of this? G बोलो यार, आपकी माइक की आवाज नहीं आ रही। जो जो आपने सर सेकंड लास्ट स्टेप है जी उसमें फिर से दोबारा से क्रोनिकल डेल्टा लिखा है सर जी उसमें। इस स्टेप की बात कर रहे हो? जी सर जी सर। यार ये यहाँ ये पीछे आया था ना, आपके पास यही चीज आई थी ना, 2 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल कर दिया, आपके पास ये आ गया। क्रोनिकल डेल्टा क्या करता है, एल को के में कन्वर्ट, या अगर पीछे मैंने उसको सॉल्व कर लिया तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर मैंने क्रोनिकल डेल्टा की पहले वैल्यू डाल दी थी लास्ट टाइम तो फिर दोबारा जरूरत नहीं है, फिर आप बेशक डायरेक्टली ये जो आंसर निकाला ये लिख लें, यानी आपके पास रिजल्ट ये आएगा जो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज दिस? we have already now that इसको how we can solve it. We know that partial phi q k dot ये किसके बराबर होगा? पार्शियल का मैंने डेरिवेटिव आपको बताया हुआ है, ये किसके बराबर होगा? पार्शियल phi q ओवर पार्शियल q k सॉरी, इसमें भी वही कि अगर आप पार्शियल एल
पार्शियल, सॉरी पार्शियल है, पार्शियल के साथ पार्शियल आएगा क्यू एल, ठीक है, और ये आपके पास आ गया क्यू के डॉट आके, ये इसके बराबर है ना, ये मैंने आप लोगों को कराया हुआ है ना प्रूफ, याद आया, ये मैंने उसमें भी करवाया था, आपको याद है जब आले लंगाजियन इक्वेशन प्रूव कराई थी उसमें भी करवाया था। ये क्यों इसके बराबर है, मैं दोबारा चलो इसको बाद में बता भी देता हूँ, दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ। ये चीज किसके बराबर है, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट के पोजीशन का, इफ वी टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये चीज किसके बराबर है, this thing is equal to, we have already proved this is 0, then we multiply 0 with any quantity, the result will be a 0, so this will be equal to phi q over partial q dot k, that will be equal to 0। ये आपके पास रिजल्ट। ओके, सो अच्छा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन फिर भी कर देता हूँ दोबारा कि ये क्यों कर मैंने लिखा, ये कैसे आया। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको बताया था अगर f फंक्शन है अल्फा एंड बीटा का, तो पार्शियल डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, पार्शियल f ओवर पार्शियल अल्फा, पार्शियल अल्फा प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल बीटा, पार्शियल बीटा, ठीक है। And I have already proved that if we have partial and if we take a total derivative, then this will be equal to partial f over partial alpha, ये चेंज हो जाएगा, अगर पार्शियल है तो यहाँ पार्शियल अल्फा आएगा, अगर टोटल डेरिवेटिव है तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ अल्फा आएगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल बीटा एंड बीटा। ओके, सिमिलरली and if f alpha है similarly अगर आपके पास if that is phi q, I have already proved that if that is phi q, तो इसका पार्शियल, इसका टोटल डेरिवेटिव है पार्शियल phi q k q k, and if that is partial, that will be equal to partial phi q k, that will be a summation term. I have already explained it many and many times why that will be repeated. Okay, and if that, sorry, that is wrong, sorry, if this is a partial, then should be a partial partial q, but if it is total, then this will be partial phi q, partial q k. I have used this term, this formula, this expression, and this expression Sir, 1 minute. I have used this formula here. Okay, I have put this partial f value
this and this. Okay, yes, आप पूछो। सर जी वो जो हमने सर ये एक्सरसाइज तो हमने प्रूव किया था सर जी, जो पोजीशन का अगर वेलोसिटी के साथ अगर पार्शियल डेरिवेटिव हो तो ये जीरो होगा। सर अभी इसके इन दोनों के ना सर पोजीशन और जो वेलोसिटी की बेसिस डिफरेंट नहीं है सर जी, एक का एल है और दूसरे का के है, तो फिर भी ये जीरो होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी पोजीशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी के रिस्पेक्ट लेंगे, चाहे इंडिसेस सेम हो चाहे डिफरेंट हो, इन ऑल केसेस दैट डेरिवेटिव विल बी जीरो इन सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स। बट आप जब एमफिल में आओगे तो वहां ये जीरो नहीं होगा। आप वहां पर ये ना कहना कि सर आपने तो ये, मैंने इसलिए पहले बता दिया था कि ये जो सिंपल, ये क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स, जब आप एडवांस थ्योरीज की तरफ जाओगे तो वहां, क्योंकि जब भी आप क्वांटम मैकेनिक्स जब भी आप कोई नई डायनामिक्स डेवलप करते हैं उसकी सीएम क्लासिकल मैकेनिक्स भी डेवलप करते हैं, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आपके कोर्स में जो है पोजीशन का जब भी डेरिवेटिव वेलोसिटी के, आपके कोर्स में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जनरली इट इज नॉट ट्रू इन एडवांस मैकेनिक्स कोर्स, यू विल स्टडी दैट। मैं वहां बच्चों को पढ़ाता हूं क्योंकि एडवांस कोर्सेज ज्यादातर मैं ही पढ़ाता हूं ना, खासतौर पे एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो एडवांस क्लासिकल में वहां मैं ये बताता हूं कि पोजीशन और वेलोसिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, उनका पार्शियल डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट नहीं है और पार्शियल डेरिवेटिव जीरो नहीं होता। बट आपके कोर्स में जो है पोजीशन का वेलोसिटी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जो है वो जीरो है। तो चाहे इंडिसेस सेम हो चाहे डिफरेंट हो, इन बोथ केसेस दैट विल बी अ जीरो। ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, ये जरूर है, मुझे ये समझाना जरूरी था, मैं तो बार बार ये यूज कर रहा हूं कि यहाँ मैंने एल इसलिए यूज किया, यहाँ क्योंकि के यूज किया इसलिए एल, यहाँ मैं अगर के यूज कर लेता तो यहाँ एल भी यूज कर सकते थे। ये तो समझ आ गई आपको, ये ज्यादा मुझे था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं दोबारा लिख भी देता हूँ, यानी इसको मैं अगर इस तरीके से भी लिखता तो देन इट इज ट्रू। वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने एल के यूज कर रहा हूँ इस वजह से, लेकिन बात हो सकता है कि नीचे जैसे मैंने के यूज किया तो कुछ लोगों के ज़हन में ये आ सकता है कि यहाँ मैंने एल, नहीं, मैं अगर इसको इस तरह भी लिख सकता तो ये भी ट्रू था, इसमें भी कोई गलती नहीं है। अगर मैं इस तरीके से भी लिखता, इफ आई राइट इन दिस फॉर्म, इवन दिस इज ट्रू इफ दिस इज क्यू के पार्शियल क्यू के आर, सॉरी पार्शियल लिखना है, जब पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा। फिर एक मिनट, ये मैं तो बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी अगर मैं इसको, मैं नीचे कर देता हूँ, अगर मैं इसको इस फॉर्म में भी लिखता, अगर मैं ये भी लिखता पार्शियल पाई ओवर, जैसे मैंने उसमें लिखा है पार्शियल पाई दिस इज इक्वल टू दिस, ये तो मैंने आप लोगों को कराया हुआ है ना, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये इसके बराबर है ना, ये चीज इसके बराबर है। ठीक है, और अगर मैं डेरिवेटिव, जाहिर है अगर के यूज कर लिया तो मुझे नया इंडिसेस यूज करना है, यहाँ फिर मैं के तो यूज नहीं कर सकता अगर मैंने पहले के यूज किया हुआ है। तो यहाँ आपके पास अगर मैं क्यू डॉट के रिस्पेक्ट ले रहा हूँ डेरिवेटिव, तो यहाँ ये यहाँ का ना डॉट, ओके, तो ये इसके बराबर थी। ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। और ये चीज जो है ये आपके पास किसके बराबर है, ये चीज जो है ये किसके बराबर है, ये जीरो है। तो on for zero. Okay, when we put these all to these two values in equation, so by this is okay. If I say that this is equation 1
and if I say that this is equation 2, by putting these two value 1 and 2, from from 1 and 2, from 1 and 2, L and Q dot A minus kinetic energy kinetic energy 2K dot minus phi Q over Q dot. This will be equal to M QK dot 0 this will be equal to P QK. This will be the formula. So this was our required result. We have to prove this. हमने ये prove करना था, यही prove करना था ना. So this will be a final result. और ये आपके पास रिजल्ट आ गया. So we have proved that H that was equal to partial L over partial QK dot. ये आपका एक्सप्रेशन था, ठीक है. उसमें आपने ये H का एक्सप्रेशन पहले हमने लिखा था. पार्शियल L ओवर पार्शियल QK की वैल्यू डाल दी. ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? ये आपने किसके बराबर निकाला? ये आपने यू हैव ड्राइव्ड दैट दिस इज इक्वल टू PQ QK डॉट. अच्छा, इसे बाज लोग इस तरीके से भी लिखते हैं और बाज लोग इसे इस तरह भी लिख देते हैं. ये आपकी मर्जी है. पेपर में अगर इस तरीके से लिखा हो तब भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है. और बाज का लोग इसको इस तरीके से, दिस इज both ways true. This is equal to this, it is also true. Or if you write in the form of this is true. ठीक है. ये आपका दोनों में आपका ट्रू है. ये आप जिस तरीके से आपको पेपर में लिखा हो आप दोनों के आपको पता होना चाहिए, ठीक है. माइनस L Q डॉट, दिस इज 100. ये अब आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है. मैं वैसे ज्यादातर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फिर बता दूं इस PQ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है. अच्छा, इसके ऊपर डॉट है, सॉरी, ये आपने मुझे बताना. माइनस L, ये दोनों एक्सप्रेशन यूज होते हैं. बाज लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, ये भी ट्रू है. दिस इज आल्सो ट्रू that this is and this is also, both are, ये दोनों, ठीक है. तो ये आपके पास आ गया.
नाउ अब हमने देखना है ये चेंज जो है ये पी से डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, एज वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस लेक्चर। अगर आपने ईद के दौरान वो लेक्चर दोबारा सुना हो यूट्यूब पे भी आप जाके सुन सकते हैं, दैट इज आल्सो अवेलेबल इन यूट्यूब एज वेल एज ऑन योर स्लेट। यानी ये दोनों ये लेक्चर्स जितने भी हैं आपके यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और एज वेल एज ऑन स्लेट, जहां से आपका दिल करे, ठीक है, तो आप इन दोनों को देख सकते हो। तो YouTube पे जो है वो आमतौर पे इधर उधर की बात नहीं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली मतलब है। तो जो जहां से आपका दिल करे, स्लेट में देखना चाहें तो स्लेट में जो स्लेट में एज इट जिस तरीके से भी है ये लेक्चर अपलोडेड है, ठीक है, आपकी मतलब एज इट ही अपलोडेड है स्लेट पे भी, और तमाम कोई चीज मिसिंग नहीं है उसमें स्लेट पे भी, और साथ का साथ लेक्चर्स आपके अपलोड हो रहे हैं। तो स्लेट पे भी देख सकते हो और यूट्यूब पे भी देख सकते हो, तो जहां से आपको ज्यादा आसान लगे, जहां से ज्यादा आपको समझ आए, ठीक है, आपके पास ये आ गया। और चेंज कैसे, जैसे हमने पहले किया था, पहले हमने इसे मतलब सिंपल जब हमने लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ जब हमने सिंपल लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी तो उसे हमने जी में कन्वर्ट किया था, और अब हमने एल को किस में किया, एच में कन्वर्ट किया। यहाँ एच किसका फंक्शन है, ये फिर दोबारा मैं रिपीट कर दूं, यहाँ एच जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, क्यू पोजीशन और फास्ट position. Now h is not function of velocity, L is function of position and velocity, h is function of q and, or you can say that this, or you can say that h is function of q and t। ये हमने प्रूव किया, याद। लेट्स चेक माय क्लेम इज ट्रू और रॉन्ग। एब्सोल्युटली दिस क्लेम इज ट्रू, क्योंकि हमने लेजेंड ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसे प्रूव किया हुआ है। तो मजीद हम कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो डी एच किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, डी एच विल बी इक्वल टू डी पी के, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड एज इट, प्लस first as it, product formula will be applied, and second will be derivative will be applied on a second if you have not applied on second. Just a wait. Okay, तो ये आपके पास आ गया, प्रोडक्ट फार्मूला विल बी अप्लाई, the derivative of first, second as well as second will be as well only as it, and then first will be as it and derivative will be applied on a second, minus this is function of L is function of Q and Q dot, so it will be treated as f as a function of f as a function of alpha and beta. So I have already explained it many and many times, partial L over QK D. So total derivative, we are applying a total derivative, so that there will be a total derivative D P K minus partial L over partial K dot K minus partial L over partial K dot dq. Okay, this will be equal to this. But I have already proved that this term is equal to pk. Okay, अभी हमने एक्सरसाइज किया, तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू so this will be equal to dpk k dot plus pk dpk
minus partial L over partial QK PQK minus P of A VQK dot, या कि यहाँ भी हमारे पास क्या था डॉट, ठीक। So this term will be cancelled with the both terms are same. This will be cancelled with this. So result will be equal to QK dot P A minus partial L over partial QK D QK. तो ये आपका now this is your result आपके पास ये, ओके। यहाँ तक तो बहुत सिंपल है, बट नेक्स्ट इज एक्सरसाइज इज व्हाट इज टाइम सर नेक्स्ट क्लास पर चलिए। नेक्स्ट क्लास किसकी है यार? आज इसे कंप्लीट कर लो। किसकी है नेक्स्ट क्लास? सर डॉक्टर अली सर, क्विज भी है सर जी आज। डॉक्टर अली साहब की है। एक मिनट जी होल्ड सर। कीजिए, एक मिनट। मैं ना एक्सरसाइज जो कि हमने प्रूव करनी थी, ये करना हमने कि ये क्या है। हमारे पास ये जो न्यूमरेटर में सर जी पार्शियल एल है सर जी, हाँ ये जी। लैग्रांजियन इक्वेशन है ना सर जी? नहीं नहीं, लैग्रांजियन इक्वेशन नहीं, थोड़ा चीजों में आपको ना फर्क नहीं कर पा रहे। लैग्रांजियन इक्वेशन और चीज है, आयलर लैग्रांजियन इक्वेशन जो हमने करवाई थी। लैग्रांजियन इज अ फंक्शन, लैग्रांजियन और चीज है, हैमिल्टोनियन और है, और हैमिल्टोनियन इक्वेशन और है। हैमिल्टोनियन एक्सप्रेशन और चीज है, और हैमिल्टोनियन इक्वेशन, खैर हैमिल्टोनियन इक्वेशन तो अभी मैं आपको ड्राइव कराऊंगा। तो ये सब चीजें अलग-अलग। दिस इज एल इज अ लैग्रांजियन, यू आर राइट, नॉट लैग्रांजियन इक्वेशन, ठीक है। क्लियर हो गया सर जी? लैग्रांजियन और सर लैग्रांजियन इक्वेशन में क्या डिफरेंस क्या है सर जी? अच्छा बात सुनो, पहले ये प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर ये सारा प्रूफ बच्चों को समझ नहीं आएगा, बाकी को ना। ये प्रूफ पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको हर चीज का, जिस चीज का डिफरेंस पाओगे वो कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा ये आपके पास इक्वेशन है, मतलब ये इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा अभी बता देता हूँ सर, एल जो है वो लैग्रांजियन है, और लैग्रांजियन इक्वेशन आप पूछ रहे हो आयलर लैग्रांजियन इक्वेशन क्या है। आयलर लैग्रांजियन इक्वेशन क्या है? वो आपके पास ये पढ़ी थी ना हमने, डी बाई डी टी, ये हमें जरूरत भी पड़ी है यहाँ सोल्यूशन में। ये आपके पास ये जो इक्वेशन पढ़ाई थी ना, ये आयलर लैग्रांजियन इक्वेशन का, दिस इज डिफाइंड एज आयलर इक्वेशन, L is defined as Lagrangian और this equation is defined as Euler Lagrangian equation। ओके, अब पता चल गया डिफरेंस? This is defined as Euler Lagrangian This is defined Euler Lagrangian equation. That is different. L will be defined as Lagrangian or this equation will be defined Euler Lagrangian equation, okay। or from this equation you know that partial L over partial QK किसके बराबर आ गया? ये मैंने राइट साइड पे ले गया, ये इधर ले गया, ठीक है, जीरो वाली साइड पे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? d by dt partial L over partial QK dot। This will be equal to partial QK dot। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों आपको? ओके
बट वी हैव अभी हमने प्रूव किया था, आज ही प्रूव किया, बट दिस पार्शियल एल ओवर क्यू के किसके बराबर है? हाँ जी, किसके बराबर है? ये मैंने किसके बराबर प्रूव किया है? आज ही प्रूव किया, अभी थोड़ी देर पहले, मतलब आज के लेक्चर में। जीरो सर। एल ओवर क्यू के डॉट, ये हमने प्रूव किया था पी के बराबर। याद आ गया? ये हमने पी के लीनियर मोमेंटम के बराबर प्रूव किया था। ठीक है, याद आया यार? अभी दिखा दूं? नहीं याद आ रहा तो, और जिसमें काइनेटिक एनर्जी और उसका पोटेंशियल एनर्जी वाला था, आ गया ना? तो ये आपके पास इसके बराबर आ गया, तो ये इसके बराबर आ गया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? टी बाई टी टी, ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? टी के बराबर। और टोटल डेरिवेटिव जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट, वो क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज विल बी टी डॉट के। तो सो आपका पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू के जो है, ये रिजल्ट आ गया इसके। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया आपके पास? जी सर। तो थोड़ा सा नीचे कर ये जो चीज है ना, ये हमने ये देखो, ये वैल्यू जो है, ये एक्सरसाइज हमने इसका रिजल्ट निकाली, और ये वैल्यू हमने पुट कर देनी है इस इक्वेशन। वी विल पुट दिस इक्वेशन, पुट इट इनटू दिस यहां, ये ओके। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज है, ये हमने प्रूव कर दिया, नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे इसको जरा थोड़ा सा ना चलो नहीं करता मैं, बल्कि एक और काम करता हूँ। ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, ठीक है। डीएल ओवर पी के जो है हमारे पास पी डॉट के आ गया। क्लियर हो गया यहां तक आपके पास? ये हम नए पेज पे चले जाते हैं। अच्छा, अब यहां पेस्ट करते हैं, ये हमारे पास था। ये हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू डालें। अच्छा, ये डी एच था, मैंने ये पता नहीं क्यों इसमें सॉरी, एच नहीं है, हमने चेंज मेजर की थी, दिस वाज अ डी एच, शायद कॉपी करने में थोड़ी डी एच ने कहा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने उसकी वैल्यू डाल दी, तो सो डी एच किसके बराबर आ गया हमारे पास? क्यू के डॉट पी के माइनस, ये क्या चीज है मैंने आपको अभी प्रूफ कराई है, ये क्या है? पी के डॉट, ऐसे ही है, ये हमने प्रूफ किया पी के डॉट, ये आपके पास आ गया डी क्यू के आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है, ये आपके पास आ गई, ये डी एच है। अब डी एच किस किस चीज के हिसाब से, या डी एच को मैं आई कैन राइट इन दिस फॉर्म, डी एच इक्वल टू, डी एच बराबर है क्यू के डॉट डी पी क्यू के प्लस माइनस पी के डॉट डी, ये आपके पास आ गया। तो डॉट को आप जो थोड़ा सा बोल्ड करना चाहो ताकि
ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब यहां आप देखो चेंज किसकी वजह से आ रही है। अब देखो तो चेंज आ रही है इसकी वजह से और इसकी वजह से, यानी एज में चेंज आ रही है आपके पास क्यू की वजह से और पी की वजह से। क्यू डॉट चाहे इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन चेंज नहीं आ रही डीएच में, यानी एच डीएच लेते हैं तो इसका मतलब चेंज एच, यानी हैमिल्टोनियन में जो चेंज आ रही है वो दो वजूहात के तहत आ रही है। वन इज द रीजन ड्यू टू दी P एंड सेकंड रीजन इज Q। यानी H जो है, जैसे मैंने पहले प्रूव कराया था आपको, लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाई थी, तो H इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज द momentum, but it is not function of the velocity. Okay, so from this equation we have proved that now H is actually the function of, so we have if we say that this equation is x, ये हमें चाहिए इसलिए इसका नाम मैं रख रहा हूँ। So we have proved that H is actual the function of, किन दो चीजों का फंक्शन है, H is function of position as well as the momentum, not function of, it is independent, it is not function of sorry, Q dot is equal to Q dot not, यानी ये उसका वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है, बट इट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज द मोमेंटम। इस तरह लिखने का मकसद ये है कि ये जो टर्म है ये बताती है कि ये इससे इंडिपेंडेंट है। शायद ना भी लिखो तो गुजारा हो जाता है, मतलब ये इससे इंडिपेंडेंट है, क्यू डॉट का फंक्शन है। इस तरह भी लिख सकते हैं हम, इस तरह भी लिख सकते हैं कि एच इज फंक्शन ऑफ क्यू एंड पी। तो एच आपका फंक्शन है क्यू एंड पी का, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्यू डॉट। ओके, अच्छा, अब इसी फॉर्म को जैसे हमने पहले किया था, याद होगा, ये वही हम रिपीट करें, इसी चीज को हम दोबारा करें तो हमारे पास डी एच किसके बराबर आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्यू और पी का फंक्शन है। जैसे एफ अगर अल्फा बीटा का फंक्शन है तो मैंने आपको बताया वो किसके बराबर होता है, एच ओवर पार्शियल क्यू के डी क्यू के। ठीक है, अच्छा यहाँ डी लगाया क्योंकि डी ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, ये पेपर में अक्सर क्विज में पूछा जाता है, ये ध्यान में रखना। अगर पार्शियल डेरिवेटिव है तो पार्शियल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा, अगर टोटल डेरिवेटिव है तो टोटल डेरिवेटिव से, अगर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्चुअल से। ठीक है, डेल्टा वाला यूज कर रहे हैं तो डेल्टा वाला, पार्शियल डेरिवेटिव या करली मतलब पार्शियल डेरिवेटिव यूज करें तो पार्शियल, टोटल डेरिवेटिव यूज करें तो टोटल। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी के पार्शियल, आपके पास ये आ गया। तो ये दोनों चीजें आपके पास आ गई। सो this will be your equation y. Okay, now sorry, since uk and pk I have already explained that they are independent, यानी आपने पोजीशन और वेलोसिटी का भी हमने प्रूफ किया हुआ है, और इसी तरह पोजीशन और मोमेंटम भी एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है इन यूर कोर्स। फिर मैं बताऊं, इट इज ओनली इंडिपेंडेंट इन यूर कोर्स दिस। अगर मैं जब मेरे पास एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ने आओगे, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग में भी कह रहा हूँ, दे आर नॉट एक्चुअली, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, but they are independent in only your course. This is in a simple classical, मैं लिख देता हूँ। in actually they are not independent, जनरल डायनेमिक्स में ये नहीं होगी, जब आप एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे वहां में इंडिपेंडेंट मिलूंगा, उनके कोएफिशिएंट भी नहीं कंपेयर कर सकते, बट इन योर कोर्स दैट इज डिफाइंड एज सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स। आप लोग सिंपल क्लासिकल अंडर ग्रेजुएट क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, दैट इज अ सिंपल एज कंपेयर टू एडवांस कोर्स। इन सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स दे आर इंडिपेंडेंट, so we can
compare the coefficient of q sorry dqk and dp because they are independent in simple classical mechanics, so we can compare. यहाँ दोबारा नोट कर लें, बट मैं दोबारा लिख भी देता हूं यहाँ ताकि आप बाद में ये ना कह सको कि सर ने, मैं आपको ये गलत नहीं पढ़ा रहा, लेकिन सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बट जब आप इन एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अभी, क्योंकि आप बच्चे हो, अभी तो आप मैथ सीख रहे हो, तो सो दैट्स व्हाई वी आर बट इन एडवांस classical mechanics for general dynamics of constraint system. It is not, यहां हम टाइमिंग ट्रू ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो जब जनरल डायनामिक्स लेंगे तो उसमें ये ट्रू नहीं होगा और हम कोफिशिएंट ऐसे कंपेयर नहीं कर सकेंगे, उसके लिए हमें मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। वो लेक्चर्स मेरे यूट्यूब में इंशाल्लाह ताला जब आप एमफिल में आओगे, ठीक है, और जब भी आप मेरे से एडवांस कोर्स पढ़ोगे तो देन हम जो है ना इसको इंडिपेंडेंट नहीं लेंगे और देन हम इस तरीके से कोफिशिएंट भी नहीं कंपेयर करेंगे, देन द मेथड विल बी डिफरेंट, ओके। तो अब क्योंकि हमारे सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स में कोर्स इसी तरह ही है, सिंपल है, तो हम इंडिपेंडेंट ले रहे हैं, तो इस वजह से लकीली हमारे लिए ये आसान है, तो हम आपको मुश्किल में डालेंगे। तो उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो आपके पास अगर डीपी के कोफिशिएंट को डीपी के से कंपेयर करते हैं तो ये चीज जो है, ये इसका कोफिशिएंट जो है ये ब्लू वाला इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी के बराबर आ जाएगा क्यू के डॉट, ठीक है, एक चीज ये आ जाएगी। और दूसरा आपके पास कौन सा कलर ले, हम ले लेते हैं सर जी। सर जी ये सारे जो वैल्यूज हम फाइंड करके सर पुट कर रहे हैं सर जी, उस इक्वेशन को भी नाम दे रहे सर, कोई नेम देते हैं सर। मैं वो बता देता हूँ, मैं उसको वो पहले मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना, मैं कर क्या रहा हूँ मैंने आपको बता रहा हूँ, फिर मैं वो लिखूंगा, वो मैं बताने लगा हूँ, वो मैं बताता हूँ। और हम क्यू के डी क्यू के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों, ये मैंने देखो कलर भी इसलिए सेलेक्ट किया ताकि आपको पता चल सके हमने क्या क्या कंपेयर किया, ब्लू वाला ब्लू के साथ और ये रेड वाला रेड के साथ, तो ये दोनों को कोफिशिएंट कंपेयर किया तो ये आपके पास 2 इक्वेशन और आ गई, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। यानी मैं आपकी बात पे भी अमल करता हूँ और इनको हम इधर लिख लेते हैं ताकि हमें नजर भी आए कि मैं वाकई वो लिख रहा हूँ या नहीं। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, एक तो हमारे पास यानी आ गया पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू के, दिस विल बी इक्वल टू माइनस पी के डॉट, ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है, और एक ये आ गई, और दूसरी क्या आ जाएगी आपके पास, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी के, ये किसके बराबर आ जाएगी, क्यू के डॉट।
ये दो इक्वेशन, एक ये आ गई और एक आपके पास, और एक आपके पास ये दोनों इक्वेशन हैमिल्टोनियन इक्वेशन कहलाती हैं। इन्हें कहते हैं हैमिल्टन इक्वेशंस या हैमिल्टोनियन इक्वेशन। सॉरी, ओके, क्लियर हो गया? समझ आ गई? इसमें कोई मसला तो नहीं है? ठीक है। नो सर। आज हमने चार इक्वेशन, 4 इक्वेशन प्रूव की हैं। ठीक है, एक वो पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू वाली, तो ये 4 इक्वेशंस आपको याद भी होनी चाहिए और डेरिवेशन भी होनी चाहिए। ये जो इक्वेशंस हैं, दीज आर कॉल्ड डिफाइन एज, ये जो रेड इक्वेशंस हैं इनको आप चाहे कोई नाम दे तो, अल्फा कह दो, मैं इसको कह देता हूं, इसको अल्फा कह दो, इसको बीटा कह दो। ये अल्फा और बीटा बेटा डिफाइन एज हैमिल्टन। इनकी डेरिवेशन अगर आप, हाँ ये हैमिल्टन इक्वेशन कहलाते हैं। हैमिल्टन भी कहते हैं बाज लोग, हैमिल्टोनियन इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ये जो रेड वाली है ना, जो अल्फा एंड बीटा आर डिफाइंड एज हैमिल्टन इन्हें हैमिल्टोनियन इक्वेशंस भी कहते हैं। बाज लोग बुक्स जो है ना, वो बाज लोग कहते हैं हैमिल्टोनियन इक्वेशंस भी कह देते हैं, इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होता। सॉरी, ठीक है, क्लियर हो गया? एक बात ये नोट करने वाली है और एक और बात नोट करने वाली है। मैं भी हो सकता है क्विज में, इसमें परेशान नहीं होना क्विज के दौरान, क्योंकि जाहिर है बच्चे बहुत ज्यादा बात कर, अगर बताना हो तो परेशान। ये अगर पी क्यू लिखा हो, मैं पेपर में पी क्यू लिखता हूँ, पी के लिखता हूँ, इसका मतलब भी यही है। यानी ये बात जो लाजमी आपने लिखनी है, ज़हन में रखनी है कि अगर पेपर क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हो, आपने परेशान नहीं होना। इस तरीके से लिखा हो, इस तरीके से लिखा हो, ऑल इज द सेम मीनिंग। ओके, ये लिखा हो, इस तरीके से लिखो, ये दोनों का मतलब ऐसे है। मोमेंटम को अगर मैं इस तरीके से डिफाइन किया हो आपको, या ये सिंबल यूज किया हो, आपने इन दोनों सूरतों में परेशान नहीं होना। ठीक है, या मोमेंटम का इस तरीके से लिखा हो, इस तरीके से लिखा हो, इसका मतलब होता है ना, या इस तरीके से लिखा हो, आपका ये कोई और चीज आ गई है। ये चारों इन चारों टर्म्स का मतलब एक ही है। ठीक है, तो इन चारों से आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। ये सर मतलब ये हो सकता है सिंबल ये आ जाए आपको, ये आपको नहीं सर ने तो ये मोमेंट ये सिंबल आ जाए तो आप कहें नहीं सर ने तो हमें ये मोमेंटम का पढ़ाया था, ये सिंबल आ जाए तो आप कहें नहीं ये पढ़ाया था। ये सारे एक ही मतलब है, ये चारों में से कोई सिंबल आ सकता है ना। मुझे उस वक्त मतलब ये सारा मैंने आपको चारों बताए हुए हैं, तो मेरे ज़हन में तो नहीं होगा ना, इनमें से कोई भी सिंबल मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए मेरा दिल है कि और कोई क्वेश्चन थे आपके। अब आप जो है ना, एक तो मैंने डिफरेंस सारे ये देख लिया, इसमें कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं आगे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। यानी कहने का मतलब है जो पिछली बातें हैं वो रिपीट कर दूं, कि वो कुछ पूछना चाहे थे हैमिल्टन इक्वेशंस क्या हैं, और बाकी वो सारी बातें मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है पहले इसमें से क्लियर कर लो, फिर वो बाकी बातें हम, इसमें है कोई किसी को? मैं एक दफा दिखा भी